So let us start today's session. Is it audible? Yes, sir. Okay. So today we will be discussing economic considerations in planning. Sir. During our previous sessions, we already talked about environmental considerations in planning. We Yes, sir. also spoke about socio-cultural considerations in planning. And today our focus will be on another important aspect, that is the economic aspect. Actually, wherever we are going to make any plan related to tourism or any other sector, we have to also take into consideration the economic implications of that plan. That is, how it is going to affect the economy of the place. From the tourism perspective, we can take any example. Suppose, let me talk about you. Suppose you will identify any area in your locality which you feel that it is having a potential for tourism. Yes, sir. And after you identify that place and you feel as a tourism professional, you perceive that it has got a potential for tourism, and you emphasize that it should be developed into a tourism destination. That means it is holding an attraction and it has a potential to be converted into a tourism destination. Now, to make it a tourism destination, to bring it on a tourism map, now there is a need to make a proper plan. And once that plan is being prepared, once the planning process starts, then there are various things that are to be taken into consideration, as in our last lectures: environmental aspects, socio-cultural aspects, now that you already know, and the economic aspects. Now, for example, if this place will develop into a tourism destination, what will be the effect on the economy? And when we talk about economy, it is to be seen that how the people living in that area will get benefited economically. What are the activities that will lead to economic benefits among the host population? And you have to also be aware about the government policy. Government has always got its economic policy. क्योंकि जो पॉलिसी गवर्नमेंट की होगी, इकोनॉमिक पॉलिसी, आपका जो प्लान है, दैट शुड बी कंसिस्टेंट टू दैट पॉलिसी. As I gave you an example of post-liberalization period earlier, that is when liberalization started in 1992, and with that there was a global agreement on tariffs and trade. There was a sea change in economy throughout the world, because with that liberalization, policies changed. Government policies regarding exports, imports had a dramatic and drastic change. Prior to that, the business of import and export was too tedious, difficult, because a lot of formalities were associated with that type of business. Lot of taxation
taxes were imposed on imports or exports, because till that time there was a reluctance on the part of governments regarding imports or exports. So I mean that there was a different scenario prior to that in most of the countries. So similarly, you have to take into consideration the existing government policy, because your plan should be consistent with that policy. If it is inconsistent to that policy, then there are chances that you may face problems while executing the plan. क्योंकि जो प्लान आपका होना चाहिए वो कंसिस्टेंट होना चाहिए जो गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी है. अगर उसमें इनकंसिस्टेंसी है तो फिर बाद में जब आपको अपना प्लान एक्सिक्यूट करना है उस वक्त डिफ़िकल्टी हो जाएगी. तो वो जो डिफ़िकल्टी है वो न हो, तो इसलिए उसमें आपको पहले से ही ये पता होना चाहिए कि क्या है इकोनॉमिक पॉलिसी गवर्नमेंट की. अब आप देखिए, सपोज इस वक्त हम प्रेजेंट की बात कर लेंगे. इस वक्त प्रेजेंट जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है लोकलाइजेशन पे शिफ्ट हो रही है. अगर आपने भी सुना होगा टीवी पे या रेडियो पे कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर भी कहता है कि लोकल को फोकस करते हैं. जब से ये कोविड-19 का सिलसिला हुआ तब से ज़्यादा फोकस लोकल पे है. उससे पहले भी मेड इन इंडिया स्लोगन चल रहा था कंट्री में कि लोकल प्रोडक्शन पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था. तो कोविड-19 का जो सिनेरियो हुआ उसके बाद तो इंटरनेशनल सारा मैकेनिज़्म इस वक्त बंद है, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी बंद है. तो आजकल तो ज़्यादा ध्यान, और इनफैक्ट डोमेस्टिक फ़्लाइट्स भी काफ़ी सारी बंद है. तो आजकल ज़्यादा फोकस लोकल प्रोडक्ट्स पे दिया जाता है. तो इसमें अगर इस टाइप की इकोनॉमिक पॉलिसी है तो उसमें ये चीज़ कंसिडर करना है कि जब आप प्लान कर रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन, अपनी जो ये टूरिज्म प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, तो आपको ये एस्पेक्ट्स उसमें कंसिडर इस अंदाज से करने हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो वहाँ पे होगी, सपोज़ वहाँ पे होटल की ज़रूरत होगी, अकोमोडेशन, वहाँ पे रेस्टोरेंट की ज़रूरत होगी फूड एंड बेवरेज नीड्स के लिए, वहाँ पे सोवेनियर के लिए सपोज़ कुछ शॉप्स की ज़रूरत है जो सोवेनियर्स सेल करेंगे, या वहाँ पे कुछ एंटरटेनमेंट के लिए कुछ और सर्विसेज की ज़रूरत है जो वहाँ पे स्टार्ट करनी है, जो एमिनिटीज़ में आएंगे. तो उसमें अगर वहाँ पे आपका ये फोकस है और गवर्नमेंट पॉलिसी ये है कि लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करना है, तो आप जब एकोमोडेशन के बारे में सोचते हैं तो उसमें उसी टाइप की एकोमोडेशन पे ध्यान देना है. उस टाइप की एकोमोडेशन को जिससे लोकल, जिसे हम कहते हैं होस्ट पॉपुलेशन को बेनिफिट आए. क्या क्या पॉसिबिलिटी है एकोमोडेशन की वहाँ पे? होम बेस्ड एकोमोडेशन. वेरी गुड. एक पॉसिबिलिटी है जिसे हम कहते हैं होम स्टे एकोमोडेशन. और Yes, होम sir. स्टे एकोमोडेशन में जो पॉलिसी है वो यही है कि जो वहाँ पे ऑलरेडी रहते हैं लोकल्स, होस्ट पॉपुलेशन, उसमें से कुछ लोग who are willing to offer their services in order to accommodate the tourists,
और उनको फिर जो वो अपने घरों में ही एक कमरा या दो कमरे उसके लिए मखसूस रखते हैं, जिसके लिए फिर वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, सपोज बेड, सोफ़ा, डाइनिंग टेबल कुछ, ताकि वो अपने घर को टूरिस्ट के एकोमोडेशन के पर्पस के लिए वक्फ रखते हैं। और जब टूरिस्ट वहाँ पे स्टे करता है तो वो जो उसके लिए पैसा स्पेंड करता है उसका इफ़ेक्ट, उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली होस्ट पॉपुलेशन पे पड़ता है, क्योंकि वो उसी होस्ट के पास वो पैसा आता है और नेचुरली उसी होस्ट घर में ही जो घर के मेंबर्स हैं वही उसको सर्व करते हैं, खाना वही पकाते भी हैं, तो उसकी वो नीड्स भी वहाँ पे फुलफ़िल हो जाती हैं और डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट उसी फैमिली, उसी घर पे, उसी होस्ट पॉपुलेशन में आ जाता है। ये है एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है कि जो यहाँ के सपोज जो बड़े बिजनेस हाउसेस हैं जिनके ऑलरेडी बड़े बड़े होटल्स हैं, तो वही होटल चेन जो है, सपोज रेडिसन की जो चेन ऑफ होटल्स हैं वो ऑपरेट करते हैं अब कश्मीर में भी। तो दूसरा ऑप्शन है कि रेडिसन अपना एक बड़ा होटल वहाँ पे बनाए उस डेस्टिनेशन पे, या और कोई होटल चेन जो है। इफ दैट विल बी द केस, then what will happen? A big hotel chain will construct its property, its hotel in that area, isn't it? After that, what will happen? Yes, sir. After that, definitely, because Radisson or other hotel chains which are operating in various parts of the country, they have their own mechanism of recruitments. They are having a huge human resource base. They will go for advertisements and they will get their staff and deploy that staff in that hotel. तो वो स्टाफ भी कहाँ से आएगा? वो यहीं से आएगा जो होस्ट पॉपुलेशन। No, that staff will not come from the host population. That staff they will get from anywhere. जहाँ से उनको better staff मिले, बाहर से मिले, कहाँ से मिले, they will get that. क्योंकि जो big chains हैं उनको already mechanism होता है, तो वहाँ पे उनका staff आता है जहाँ से भी उनको मिले, क्योंकि वो टैलेंट को अट्रैक्ट करेंगे, चाहे वो टैलेंट कहाँ से भी है वहाँ से उसको लाए और वहाँ पे रखेंगे. That is what happens with big chains. Yes, sir. For example, you will see a big hotel chain property in Pahalgam और गुलमर्ग, जो बड़ा होटल है कोई स्टार ग्रेड होटल, तो उसका स्टाफ वहाँ से है, उस जगह से, उसका स्टाफ कहीं से भी होगा, श्रीनगर से होगा या बाहर से होगा, श्रीनगर के बाहर से भी होगा, isn't it? Yes, sir. So they will look for staff which is professional and other, so they will deploy that staff in the hotel. And whatever they require, for example, because big hotel chains, they have their own mechanism of procurement. जो वो चीज़ें लाते हैं, क्योंकि उनके पास हज़ारों रूम्स होते हैं, उनके पास सैकड़ों प्रॉपर्टीज़ होती हैं, होटल्स, तो उनके पास सप्लाई की ज़रूरत बहुत होती है जो उनको चाहिए. सपोज उनको फॉर एग्ज़ाम्पल चाहिए, जो भी चाहिए होटल के लिए स्टॉक, चाहे राइस चाहिए, ये वेजिटेबल्स चाहिए, बाकी सारी चीज़ें चाहिए, शुगर चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, घी चाहिए, तो उनको ऑलरेडी एक सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग सिस्टम रहता है, क्योंकि उनको सारे होटल्स, उनके बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं, तो वो उसके लिए ऑलरेडी सप्लायर्स रखते हैं who supply them with those products. तो फिर वो वहाँ से अपने अपने यूनिट्स में वहाँ बेचते हैं. तो इस प्रॉपर्टी में जो सप्लाई चाहिए वो भी कहाँ से आएगी, वो भी ज़रूरी नहीं है कि उस विलेज से आएगी, वो भी पता नहीं कहाँ से आएगी. Isn't it? तो उसके बाद जब वहाँ पे
टूरिस्ट्स आ जाएंगे, वो पैसा स्पेंड करेंगे, तो वो पैसा अब कहाँ पे गया? होस्ट पॉपुलेशन में या पॉपुलेशन होस्ट पॉपुलेशन के बाहर गया? होस्ट पॉपुलेशन वो पैसा कहाँ जाएगा होस्ट पॉपुलेशन में? मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। जब कोई बड़ी होटल चेन वहाँ पे होटल बना रही है और उसने अब एम्प्लॉयज़ बाहर से लाए और वहाँ पे रखे, क्योंकि प्रोफेशनल स्टाफ लाया, उसकी जो सप्लाई आती है वो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम से आती है, क्योंकि उनको बहुत सारे होटल्स हैं। सपोज़ बड़ी चेन का होटल गुलमर्ग में भी है, सोनमर्ग में भी है, पहलगाम में भी है, सपोज़ वहाँ पर भी खोला, श्रीनगर में भी है। तो वो सारे होटल्स के लिए परचेज एक साथ करते हैं सप्लाई। सपोज उनको घी लाना है, वो घी लाएंगे एक साथ 50 डब्बे, 50 पैक्स। उनको शुगर लाएंगे, वो एक साथ 2-3 क्विंटल 4 क्विंटल लाएंगे, isn't it? या बाकी चीज़ें लाना है वो एक साथ लाते हैं, फिर वहाँ अपने अपने यूनिट्स में बेचते हैं। तो इसी तरह से जब ऐसा प्रॉपर्टी वहाँ पे इस डेस्टिनेशन पे बनाई गई या बनाई जाएगी, तो उसका बेनिफिट, इकोनॉमिक बेनिफिट किस पे आएगा? होस्ट पॉपुलेशन पे या उससे बाहर जाएगा? चेन आप जो होटल है उनको आएगा, क्योंकि वो बाहर से सब मंगाते हैं। क्योंकि उसका जो बेनिफिट है वो होस्ट पॉपुलेशन में बहुत कम आएगा, क्योंकि वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बाहर के हैं, उनको जो सैलरी मिलेगी तो वो अपने अपने एरियाज़ में घरों में भेजेंगे, isn't it? उनको जो माल लाया सप्लाई के लिए वो भी बाहर से किसी सप्लायर ने दिया, उस गांव से नहीं खरीदा उन्होंने वो स्टॉक। अब जब हम पहले एग्जांपल ले रहे थे होम स्टे एकोमोडेशन की, उसमें अगर उसको शुगर चाहिए, सपोज घर में 2 किलो शुगर, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा लाना है, उसको कुछ ही टूरिस्ट्स आएंगे, मतलब उसके घर में 1 कमरा या 2 कमरे हैं, जो वो शुगर लाएगा, घी लाएगा, वो कहाँ से लाएगा? वो लोकल वो मत जाएगा घी का 1 किलो लाने के लिए श्रीनगर या कहीं दूर। वो घी का 1 पैकेट उसको चाहिए, या उसको और कोई चीज़ चाहिए, मीट चाहिए उसको 1 किलो, या चिकन चाहिए, वो लोकल जो बुचर होगा वहाँ पे उससे लाएगा, लोकल जो ग्रोसरी शॉप होगा उससे लाएगा। उसको राइस चाहिए अगर उसके अपने पास है, या अपने नेबर से खरीदेगा, isn't it? Yes, sir. तो दैट मीन्स उसका बेनिफिट डायरेक्टली किसको आएगा? होस्ट पॉपुलेशन को, क्योंकि जो जिसने ये होम स्टे एकोमोडेशन रखी, एंड द मनी विच द टूरिस्ट स्पेंड्स इन हिज होम, दैट मनी ऑल्सो गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द होस्ट पॉपुलेशन। क्योंकि ये अगर सपोज अगर इसको अपने उस गेस्ट हाउस के लिए मैट्रेस का कवर बनाना है, उसमें भी वो लोकल टेलर जो गांव में होगा उसी टेलर के पास उसकी सिलवाई करेगा, isn't it? Yes, sir. या अगर उसको सपोज और कोई चीज़ लाना है, तो वो भी वो लोकल, अगर उसको इवन 1 कमरे का, क्योंकि उसके पास अब 1 कमरा है जिसको उसको फर्निश करना है, अगर उसको फर्श डालना है, कारपेट या कुछ डालना है, अगर गांव में कोई है जो सेल करता है ना ये चीज़ें फर्निशिंग, तो वो उसकी फर्निशिंग उसी से करवाएगा, क्योंकि वो 1 कारपेट के लिए दूर नहीं जाएगा, क्योंकि उसको फिर वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस चढ़ेंगे, बाकी चढ़ेगा, उसको अलग सी टैक्सी करनी है उसके लिए, तो वो प्रेफर करेगा, ही विल टेक इट फ्रॉम द लोकल फर्निशिंग शॉप। लेकिन होटल को जब फर्निशिंग करनी है 100 कमरों में या 50 कमरों में, उतनी फर्निशिंग का सामान वो लोकल शॉप से नहीं खरीदेगा, ना उसके पास वो चॉइस होगी। तो ये जो है, ये 2 मॉडल्स हैं। ये जो आपने वो वाला मॉडल देखा पहला वाला, उससे, उस इकोनॉमिक मॉडल से लोकल इकोनॉमी बूस्ट होगी, होस्ट पॉपुलेशन बहुत बेनिफिट हो सकती है। और फिर नेचुरली जब हम यहाँ पे करेंगे बात होटल चेन की, इस बड़े होटल में 100 कमरे भी हो सकते हैं, isn't it? दैट मीन्स अगर 200 टूरिस्ट भी आएंगे तो वो उसी एक होटल में रहेंगे, क्योंकि उसमें
100 लोगों को या 200 लोगों को एकोमोडेट करने की फैसिलिटी है। लेकिन होम स्टे में एक घर कितने टूरिस्ट्स को एकोमोडेट कर सकता है? एक या दो। है ना, 2, क्योंकि सर। उसके पास एक कमरा या 2 कमरे होंगे। तो उसमें अगर 100 टूरिस्ट्स आएंगे उस एरिया में और 50 होम स्टे एकोमोडेशंस बेनिफिट हो सकती हैं, 50 घर। अगर 50 घर वाले भी होम स्टे एकोमोडेशन के साथ उस स्कीम के साथ जुड़ जाएंगे तो उतने घर बेनिफिट होंगे। और फिर उस घर में होम स्टे में मत उसको एम्प्लॉय रखना है बाहर से या कुछ, उस घर के जो फैमिली मेंबर्स हैं दे विल बी बेनिफिटेड बाय दैट स्कीम, क्योंकि किचन में जो बनेगा वहाँ पे घर की बहू बेटी जो भी हैं वो बनाएगी खाना, इजंट इट? तो यस सर। उसको भी बेनिफिट है, क्योंकि जो पैसा वहाँ पे आएगा उस टूरिस्ट से तो वो सर्कुलेट हो जाएगा पूरा लोकल इकोनॉमी में। वाइल एज अगर होटल में वही चीज़, तो वहाँ पे शेफ्स होते, स्टाफ होता, पता नहीं वो किस बाहर से वो स्टाफ होता, तो वो पैसा लोकल इकोनॉमी को बेनिफिट ही नहीं करेगा उतना। यस सर। तो ये होती है इकोनॉमिक कंसिडरेशंस इन प्लानिंग। अगर आपका फोकस ये है कि इससे मेरे एरिया की इकोनॉमी डेवलप होनी चाहिए, तो आप प्लान में इस टाइप की एकोमोडेशन को फोकस कर लोगे कि यहाँ पे एकोमोडेशन शुड बी इन द फॉर्म ऑफ होम स्टे एकोमोडेशन। ये प्लान बनता है ना, क्योंकि जब प्लान बनता है फिर उसी तरीके से वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। यस सर। क्योंकि बाद में, क्योंकि पहले तो प्लान ही बनता है, फिर गवर्नमेंट उसी प्लान के हिसाब से फिर वहाँ पे बड़ी होटल चेन्स को ऐसी जगह पे अलाउ ही नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं जी इस जगह के लिए डेवलपमेंट प्लान इस तरीके पे बना है, यू कांट गो एंड कंस्ट्रक्ट ए होटल इन दैट प्लेस बिकॉज दिस इज़ ए रूरल इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट मॉडल प्लान। यहाँ पे उनकी इकोनॉमी अपलिफ्ट करनी है, इसलिए हमने यहाँ पे ये ऑल्टरनेटिव टाइप ऑफ एकोमोडेशन यहाँ पे रिकमेंड हुआ है। तो हो गया ये चीज़। दूसरा चीज़ हो गया कि फिर होम स्टे के साथ जो इसका मल्टीप्लेयर इफेक्ट है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, जैसे मैंने अभी आपको बोला। क्योंकि जो अगर होम स्टेज में सपोज 10, 20, 30 घर जुड़ गए तो उन 30 घरों की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि नेचुरली जो उनके अपने खर्चे थे अब उससे डिमांड ज़्यादा होगी, क्योंकि अब उनके घर में टूरिस्ट्स आएंगे, तो नेचुरली जो उनके अपने रिक्वायरमेंट्स थे उससे रिक्वायरमेंट सब बढ़ जाएंगी, क्योंकि अब उनके घर में वो चीज़ें भी आएंगी जो वो पहले शायद नहीं लाते थे। सपोज मे बी वो घी आइटम्स ज़्यादा नहीं बनाते थे, अब घी की कंजप्शन ज़्यादा होगी, क्योंकि अब जो अब उनको बनाना है, प्रिपेयर करना है, क्योंकि उनको फूड एंड बेवरेज नीड्स जो टूरिस्ट्स की हैं वो भी फुलफ़िल करनी है। या फॉर एग्ज़ाम्पल जो अभी तक उनकी रिक्वायरमेंट थी फर्निशिंग की, अभी तक रखा था एक लाके फारिश बहुत सालों के लिए, लेकिन अब चेंज करना पड़ेगा, अब अच्छा रखना है, साफ़। या कर्टन्स रूम्स के अब एक नहीं 2 सेट्स भी रखने हैं, क्योंकि जब एक वॉश होगा तो दूसरा लगाना है। तो ये जो है ये इनकी ये नीड्स फुलफ़िल करने के लिए जो वहाँ उस एरिया में और लोग होंगे जो इन चीज़ों के साथ जुड़े हैं, सपोज़ फर्निशिंग का जो सामान बेचता है, अब उसकी सामान की डिमांड भी बढ़ गई, क्योंकि 10-20 घरों को एडिशनल कर्टन्स, एडिशनल कारपेट्स चाहिए, तो उससे वो
जो लोकेलिटी में उन चीज़ों के साथ डील करते हैं उनको बेनिफिट आ गया। फिर जो वहाँ पे लोकल बेकर है जो बनाता है, नानवाई है, तो उसको और डिमांड बढ़ गई। मे बी आप सपोज वो ब्रेड बनाएगा क्योंकि आप इनको ब्रेड की ज़रूरत है। तो दिस वे जो वो लोकल जो वहाँ पे पॉपुलेशन है उसमें खाली अब इसको नहीं, जो होम स्टे अकोमोडेशन प्रोवाइड करता है उससे बेनिफिट पहुँचा, क्योंकि जो पैसा उसको टूरिस्ट से आता है उसमें से वो बहुत सारा पोर्शन उसी होस्ट पॉपुलेशन में ही खर्च करता है। He spends a part of that money in the host population which gets circulated in the local economy. तो ये चीज़ें हैं, उससे क्या होगा। अच्छा, फिर फॉर एग्ज़ाम्पल जो वहाँ पे अगर किसी के पास व्हीकल हैं, गाड़ी है, किसी के पास टवेरा है, कोई और गाड़ी है, स्कॉर्पियो है, तो टूरिस्ट को सपोज अब होम स्टे एकोमोडेशन में किसी को टूरिस्ट फैमिली आ रही है, अब उसको लेने के लिए एयरपोर्ट जाना है, एयरपोर्ट से फिर लाना है वहाँ पे, उसके बाद सपोज जब वो वहाँ पे स्टे करे, कुछ आसपास कोई उसको साइट सीइंग करवाना है, फिर वापस छोड़ना है, तो उसके लिए अगर पड़ोस में किसी के पास गाड़ी है, सुमो, स्कॉर्पियो, टवेरा, इजंट इट, तो उसकी गाड़ी भी यूज हो सकती है ना इस पर्पस के लिए, बिकॉज दिस होम स्टे एकोमोडेशन यूनिट विल मेक यूज ऑफ दैट व्हीकल, और वो कुछ पैसा उसके पास भी जाएगा, उस ट्रांसपोर्टर के पास, तो ही विल बी ऑल्सो बेनिफिटेड विद दिस एक्टिविटी। तो फिर अगर उसी एरिया में कोई कश्मीर आर्ट्स का काम करता है, एम्ब्रॉयडरी, शॉल्स, कारपेट्स, पेपर मैशी, तो कोई चीज़ जो वो बनाता है वहाँ पे, उस चीज़ को जो वो टूरिस्ट वहाँ पे रहे वो उसको एज अ सोवेनियर वापस ले जा सकते हैं, उसको कहते हैं सोवेनियर, उस जगह की याद में कोई चीज़ खरीदते हैं, तो वो सोवेनियर्स बेच सकते हैं वो लोग जो उसके साथ डील करते हैं उन चीज़ों में, और उनके पास भी पैसा पहुंचेगा, राइट। तो इस तरीके से ये जो होस्ट पॉपुलेशन है इसमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स आएंगे, और जब होस्ट पॉपुलेशन में इकोनॉमिक बेनिफिट्स आ जाएंगे और उनको लगेगा कि हाँ, टूरिज़्म की वजह से हमको फ़ायदा आ गया, वी आर गेटिंग बेनिफिटेड एज अ रिज़ल्ट ऑफ टूरिज़्म, वी आर गेटिंग बेनिफिटेड एज अ रिज़ल्ट ऑफ, जस्ट अ मोमेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके साथ बात कर रहा था अभी कि इसका जो बेनिफिट है, इसका लोकल इकोनॉमी पे कितना बेनिफिट आ जाएगा, क्योंकि जो लोकल पॉपुलेस है वो जब फील करेंगे कि हमको फ़ायदा आ गया, तभी वो होल हार्टेडली इसके साथ जुड़ जाएंगे। So that will be a participative tourism. That means when local population is wholeheartedly participating and enthusiastic about flourishing of tourism at that place. Otherwise, what will happen if local population will not feel any benefit
they will feel that there are others who are coming from outside, they are harvesting all the benefits out of it. Then gradually resentment starts. फिर उनको ठीक ही नहीं लगेगा, बोलेगा कि हमको कोई फ़ायदा ही नहीं है इससे. तो उससे क्या होता है, उससे फिर जो मेन पर्पस है टूरिज्म का, दैट इज़ टू इम्प्रूव द गेस्ट होस्ट रिलेशन. क्योंकि जो बेस्ट फॉर्म ऑफ टूरिज्म है वो तब होगा व्हेन guest host population is strengthened, when there is best guest host relationship. So that is possible when the host population is satisfied, is happy with tourism, and they will be happy when they will be getting benefits out of it, isn't it? So Yes, sir. that is why we have to take various considerations in planning, so that we will make such plans that will be conducive to the environment of the place, that will be conducive to the socio-cultural environment of the place, and that will be conducive for the economy of the local population. Condition. So that is all we have to discuss in considerations in planning. Okay? Yes, So sir. inshallah in our next session we will be talking about levels of tourism planning, right? ठीक है सर. तो इसमें आपको सारा कुछ अंडरस्टैंड किया आपने प्रॉपरली? Yes, sir. ओके.